Good morning, class. So we'll continue with the sample paper itself. We have done to question number 9. Number 10 is let's see. Again, let's see what it is. Find the unit vector in the direction opposite to minus 3 by 4 j cap. We have to find a unit vector in the direction opposite. If you have a vector A, then the unit vector is what? Unit vector is given by A upon magnitude of that is the unit vector A upon magnitude of A. So if you are using this vector is what? Minus 3 by 4 j cap. Then the unit vector will be what? Minus 3 by 4 j cap divided by magnitude of this will be A vector क्या होगा? 9 by 16. ऐसे ही आपने is equal to minus 3 by 4 j cap divided by minus 3. ये तो unit vector in its own direction. Unit vector in the direction of A. A vector के direction पर अगर हम opposite direction को क्या करें minus से j instead of minus j क्या हो जाएगा j opposite to minus ले तो plus. Then come to question number 11. Find the area of the triangle whose two sides are respectively given by the vectors. We have given area of triangle is area of triangle vector form is given by two sides. Two sides of are represented by the vectors. Then side A, side AB is represented by the vector A, and side second is represented by the vector B, that is minus 3. So your area of triangle is given by half A cross B. Now it is direct half of AB that is 2 I cross minus 3. हमें पता I cross J कितनी होगी? I cross J क्या आपको वेक्टर है? I cross J is K. These are minus 6 equal to minus ये माइनस कट जाएगा यहाँ से क्योंकि क्या लगता तो इनको माइनस ले तो आपका माइनस ये इस तरह होगा कि आपका अगर ये आपका ये यूनिट वेक्टर लेके आता है हाँ ये माइनस लेके आता है इनको प्लस अब ये उसमें लेके आता है एरिया किसमें आता है ना एरिया इज व्हाट है ना इसमें वेक्टर फॉर्म आएगा तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर magnitude निकालेंगे तो वो 36 का 36 स्क्वायर का प्लस magnitude का magnitude क्या है 6 के क्या magnitude 6 only divided by 2 that is 2 and come to question number 12. Question number 12 is let's see. Find the angle between the unit vectors A and B. Vectors are what? Unit vectors. So, let the two vectors, vector magnitude of A is one magnitude. They want the angle between the unit vectors A and B, given that A cap plus B cap, A cap plus B cap is equal to magnitude of A cap plus B cap. Now you know that A plus B cap का whole square करते हैं इसका whole square क्या आ रहा है
A cap magnitude of A cap square plus magnitude of B cap square plus times magnitude of A cap into magnitude of A आ जाएगा A अपन को होता है वेक्टर A या A कैप क्या होगा A कैप क्या होगा A या B या यूनिट वेक्टर से और B क्या है यूनिट वेक्टर से यूनिट वेक्टर से तो मैग्नीट्यूड होगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 ठीक है और ये क्या रहेगा A प्लस B भी हमने रखा था 1 स्क्वायर 1 1 हो गया कैंसिल करना माइनस 1 is equal to 2 minus 1 by 2 is equal to क्या मैग्नीट्यूड ऑफ A की मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा हाफ अब आप देखो ये तो अपना आ गया माइनस हाफ अब हमें पता है ये क्या होगा A डॉट B is equal to मैग्नीट्यूड cos definitely that from here we can say cos theta is cos theta value क्या minus half ये क्या है आ जाएगा अपना माइनस हाफ मतलब यस कैसे और भी आता है एक और भी क्या आता है और क्या बोल अभी अपन cos थीटा इज इक्वल टू माइनस तब होता है हाफ हाफ टू में पाई बाय that's पाई बाय 3 this half so it will be minus cos pi minus the second quadrant angle between them theta is equal to हमारे थीटा की वैल्यू क्या है that clear है then come to next one question number 13 question number 13 is find the direction cosines of the normal to the bisect plane. Bisect plane कौन सा होता है? ये y plane, ये z axis है. तो normal to the bisect plane basically y z axis यहाँ पे आपस में perpendicular होता है. तो normal to the bisect plane normal को हम क्या x axis तो वो बोल रहे हैं find the direction cosines of the normal to the bisect. So x axis is normal bisect मुझे तो x axis क्या है नॉर्मल bisect और हमारा नॉर्मल के में डायरेक्शन कोसाइंस x axis का क्या होगा 90 डिग्री आपको बता रहा है cos थीटा तो cos क्या होगा सॉरी 0 डिग्री नॉर्मल जो होगा ये नॉर्मल है ना इसके लिए bisect axis bisect का प्लेन से है इसके लिए नॉर्मल क्या होगा x axis का होगा तो अब ये एक्चुअली नॉर्मल जो है x axis के साथ क्या है cos cos 90 and one yes easy question for the question number 14 number 14 is find the coordinates of the point where the line cuts the xy plane ये लाइन किसको कट कर रही है xy प्लेन को कट कर रही है अगर xy प्लेन में कोई भी लाइन कट करते हैं सपोज this is your xy plane yeah so just see question number 15 just see what they're saying the coordinates of the point where the line cuts the xy plane suppose ये xy plane है कोई लाइन इसको कट कर रही है तो xy plane को कट कर रही है मतलब उसका z कोऑर्डिनेट क्या है 0 so its z coordinate will be equal to what 0 so what we have to keep we have to keep just the z coordinate as 0 equation of line given is x plus 3 upon 7 is equal to y minus 1 upon minus 1 z minus 5
Now you have to find the coordinates of the point where the line cuts the xy plane. Now this line is cutting the xy plane. XY plane को cut करने के मतलब जो plane को xy plane है z plane वो 0. Now z की value 0 करेंगे और plus 0 minus 5 of minus 5 equal to x plus 3 upon. Here we have x plus 3 upon minus 1 minus 1 x in 1. This implies x plus 3 is equal. This implies x is also 0. Same way y value निकालेंगे y minus 1 by minus 1. Again 0 minus 5. ये अपना 0 minus 5 minus 5 क्या रहा 1 y minus 1 is minus 5 x is equal to 0 y is equal to 0. We have to find the point where it cuts the. Find the coordinates of the point where it cuts the xy plane. कहाँ cut करेगा 0 0 0. The point is what? Right, so the point cuts. You can write it the same way. I'm not writing. So the point where it cuts the xy plane is 0. X is 0, y is 0, z already is. Then question number 15. Question number 15 is what? Let's see question number 15. The probabilities of A and B solving a problem. It's a good question. Yeah? The probabilities of A and B solving a problem independently are 1 by 3 and 1 by 4. Probability of A is equal to 1 by 3. Probability of B solving a problem is 1 by 3. Okay? Now they are saying respectively, if both of them try to solve the problem independently, what is the probability that the problem is? है ना? अगर दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना चाहें मतलब या तो ए ने सॉल्व किया या फिर बी ने सॉल्व किया यही निकालना है either A is solving the problem or B is solving the problem independently. तो इस A और B मतलब क्या होगा? A यूनियन B भी क्या है तो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स A का सेक्शन क्या होगा? is B equal to P into P ये होगा A इंटरसेक्शन की क्या होगा? A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या होगी? 1 by 3 1 by 4 अब ये A यूनियन B की वैल्यू क्या होगी? plus B of minus B of A intersection. You have to just put the values. A is equal to 1 by 3 plus PB is 1 by 4 minus 1 by 3. So it will be 4 plus 3 7 by 12 minus 1 by 12 by 2. This was the question number 15. Was the question number. Then come to question number 16. The probability that it will rain on any particular day is 50%. किसी दिन rain होगी उसकी probability क्या है 50%. Find the probability that it rains only on the first 4 days. Only on the first 4 days. उन्होंने बोला first 4 days. First 4 days का ध्यान रखना. Any 4 days नहीं, any 4 days में condition अलग हो जाएगी. First 4 days yes. Question number 16 is just see. They're saying the probability that it will rain on any particular day. The probability that rain it will rain is 50%, that is 50 by 100 and probability that will not rain. Not rain on a particular day is again 50 by 100. 1 minus 50 by 100 that is 50 by 100 that is 1 by 2. Okay, so probability of rain और not rain दोनों क्या है 50% क्या है अगर वो 50% है तो not rain की क्या होगी 1 minus 50% that is 50% मतलब 1 minus 50% समझ में आ गया क्या हो गया 1 minus half that would be half अब तो बोल रहा है कि find the probability that it rains only on the first 4 days of the week. कितने days होते हैं 1 2 3 4 5 6 बोला फर्स्ट 4 days में क्या होगा रेन
तो यहाँ रेन में ऑलरेडी ये 3 days वो एग्जैक्टली बोला हुआ क्वांटिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन ओनली ऑन फर्स्ट 4 days, मतलब ओनली ऑन फर्स्ट 4 days इन 4 days में ये तो रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ इनटू हाफ यहाँ तो सारी सेम है नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी कितना हो गया बाकी इक्वल टू 1/2 अब अगर यहाँ नॉट रेन की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगी तो this question is fine easy question है so this was your section 1 complete we have completed section 1 now come to section 2 part A का section 2 तक now in case studies I told you this will be given a case study and 5 questions will be followed by MCQ based question number 17 is case careful. An architect designed a building for a multinational company. एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है. Now, when he is designing, the floor consists of a rectangular region. Floor क्या होगा? Floor में एक rectangular region. जो floor होगा, उसका region कैसा होगा? Rectangular region with semicircular ends. सेमीसर्कुलर ये फिगर भी आपको दिखाना है. एक रेक्टेंगुलर फ्लोर होगा उसपे सेमीसर्कुलर एंड्स होंगे हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर एज शोन. पेरीमीटर होगा ये रेक्टेंगुलर फ्लोर का पेरीमीटर तो ये है ना यहाँ से यहाँ भी तो मैंने आपके कॉलेज के लिए नाम रेक्टेंगुलर ये दे रखा है आपको x राइट और पेरीमीटर दे रखा है पेरीमीटर ऑफ फ्लोर पेरीमीटर इज 200 पेरीमीटर आपको गिवन है क्लियर तो आपका ये आपके आगे x रेक्टेंगल राइट x अब यहाँ उसका सर्कल सेमीसर्कल का सेंटर यहाँ होगा तो सेंटर यहाँ होगा तो बीच का सेंटर ये जो रेडियस कितना हो जाएगा y रेडियस कितना हो जाएगा y पेरीमीटर होगा कितना पेरीमीटर होता है ये x प्लस x ना 2x अब बाकी ये वाला और बच्चे क्या करते हैं इसको भी पेरीमीटर में लिखते हैं. दिस इज नॉट कमिंग इन पेरीमीटर. ये जो आपका पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री होता है परफेक्ट ये होगी सेमी सर्कल का आपका पेरीमीटर क्या होगा प्लस पाई 2 पाई आर होता है ये पाई आर इस वाले का फर्स्ट वाला का और सेकंड वाले का इसका हो जाएगा 2 पाई आर की जगह पाई आर है प्लस इसका भी हो जाएगा पाई इनटू ये टोटल पाई है और ये जो रेडियस है ये भी हो जाएगा पाई का दो सेमी सर्कुलर है आप चाहो तो डायरेक्ट ले सकते हो डायरेक्ट ले लिया तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट लेने पे क्या हो जाएगा सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर तो 2 पाई आर आंसर पाई ये भी आप इसको भी ऐड करके पाई कॉमन का पाई का डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि आप पेरीमीटर में दे रखा है 200 x प्लस पाई पाई बाय प्लस बाय क्या होगा आ जाओ पहले क्वेश्चंस what they are asking based on the above information answer the following question. First one is if x and y represent the length and breadth of the rectangular region then the relation between the variables is अगर x और y क्या दे रखे हैं हमें length and breadth of the rectangular region then they are saying the relation between the variables के बीच का relation क्या होगा obviously वही चीज बीच में करना है 100 is equal to 2x plus 5 अब मैं क्या कौन सा आंसर आएगा इसका फर्स्ट आंसर आपका आएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर बी पेरीमीटर इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू x plus 5 कौन सा रिलेशन वो उन्होंने पेरीमीटर के बीच में कौन सा रिलेशन x y के बीच में
वैलिड होगा तो ऑब्वियसली वेरिएबल भी निकाल सकता है उससे डायरेक्ट discuss parallel mass. Then come to the second one. The area of the rectangular region A is expressed as a function of x. Area को हम x के function में डिस्क्राइब कर रहे हैं. Area क्या होता है second part? Area क्या होता है? Area of the rectangular region पूछा तो area of rectangular region क्या होगा x. ये आपका breadth हो गई length हो गई x into y हो गई area of the rectangular. अब अपन को यहाँ से हम x और y तो हम y में इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ x चाहिए तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा 200 माइनस 2x ऑन पाई सकते हैं अपन यहाँ से ये जो फर्स्ट अपन ने पेरिमीटर वाली क्वेश्चन निकाली थी उससे आ सकता है 200 माइनस 2x का x मल्टीप्लाइड बाय x बाय 200 माइनस 2x पाई is equal to 8. ठीक है अब आप देखो इसका आंसर क्या है 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से ले सकते हैं यहाँ से 2 कॉमन लेंगे 2 कॉमन 2x 100 माइनस और यहाँ पे आ रहा है 2 कॉमन 100 माइनस 5 just 2 by 5 100 x minus now this 4 1 tie 100 x minus x square this is the a part है part आंसर है a फर्स्ट का आंसर है फर्स्ट सेकंड अपन ने कर ली नाउ थर्ड पार्ट व्हाट इज इन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया क्या बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू एरिया को लिखे maximum area का होता है area will be maximum when we differentiated and get it 0 तो x की किस वैल्यू पे हम निकाल सकते हैं हमारा area इक्वेशन area is equal to 2 upon 5 100 x minus now let's see area को maximize करना है area को maximize करना है तो क्या करेंगे differentiate करके x तो we get by dx will be equal to 2 upon 5 100x का क्या होता है now dA by dx is equal to 0 0 पुट करने पे x की क्या वैल्यू है ये तो आपका 100 minus x plus 100 minus 2x plus 100 2x और x वैल्यू क्या है x तो जब x की वैल्यू 50 आएगी then the area will be maximum अब इसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं अभी we find d square by dx square जब हम d square by dx square करते हैं तो मैक्सिमम डिग्री क्या होता है नेगेटिव आना ऑब्वियसली दिख ही रहा है 2/500 कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 पे माइनस क्या है -4/5 which is negative if d by d square by d square is negative that means there is a point of maximum ये आपको क्या दे रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हमारे को x आया डायरेक्टली हमें पता चल रहा है कि ये पॉइंट ऑफ क्या है मैक्सिमम ठीक है x is equal to 50 is the point of maximum yeah now next part is that was your third part now fourth part is they are saying the CEO of the multinational company is interested in maximizing the area of the whole floor including the semicircular अब वो बोल रहा है जो सीईओ था मल्टीनेशनल कंपनी का उसको सिर्फ रेक्टेंगुलर रीजन का वो ही मैक्सिमाइज करना है उसको पूरे फ्लोर को मैक्सिमाइज करना है तो इफ यू रिमेंबर फ्लोर में क्या होता है ये रेक्टेंगुलर रीजन का और ये सेमीसर्कुलर है तो पूरे एरिया को मैक्सिमाइज करना है फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ x शुड बी तो ये करने के लिए x की वैल्यू क्या होगी अब एरिया क्या होगा now your area will be equal to now your area will be equal to पहले आपका एरिया क्या है सिर्फ xy है ना ये रेक्टेंगुलर रीजन का ये x का y अब ये सर्कुलर रीजन क्या है उसका सर्कल पाई r स्क्वायर r स्क्वायर r is y
क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्कुलर एंड ये क्या है, सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर, दो सेमी सर्कल मिलाएंगे तो क्या मिलता है, वन सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और x बार प्लस पाई वाई स्क्वायर, ये है ना। अब आप y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू की वैल्यू ये हो जाएगा पाई x माइनस x into y की वैल्यू 100 माइनस x अपॉन 200 माइनस 2x पाई प्लस पाई बाय 2 अलग अलग 200 माइनस 2x अपॉन पाई का पाई का होल स्क्वायर को मैं इसको बाहर निकालूं, पाई स्क्वायर करने पाई का कैंसिल, यहाँ से भी अपन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 200x माइनस 2x स्क्वायर पाई, पहला आपका हो गया, यहाँ पे से भी अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर पाई हो गया, ये आपका हो जाएगा 100 माइनस x को अंदर ले लिया 2 कॉमन 200 का 2 बाहर आया 100 माइनस प्लस यहाँ पे ये आ गया आपका पाई पाई कैंसिल हो गया 1/4। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, कॉमन ले सकते हैं, आगे कॉमन ले सकते हैं, अब 100 माइनस क्या है x का होल स्क्वायर, अभी होल स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ऊपर स्क्वायर नीचे कर देते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/4 आंसर क्या है 2/5 100x माइनस x स्क्वायर प्लस 1/5 100 माइनस x। अब ये तो आपका a आ गया, तो a की बात हम क्या निकाल सकते हैं, दिस इज योर a, a by dx मैक्सिमाइज करने के लिए क्या चाहिए, when you will do dA by dx what you get 2/5 100 minus 2x plus 1/5 क्या हो जाएगा 2 times 100 minus 2x, sorry 100 minus x into minus 1। अब जस्ट इसको आपको सॉल्व करना है, dA by dx को क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, वैल्यू को जब हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे x की वैल्यू dA by dx तो जीरो पुट करेंगे, आपको x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट मींस क्या रेक्टेंगुलर रहेगा ही नहीं, सिर्फ सेमी सर्कुलर रीजन रहेगा। मैक्सिमाइज करने के लिए फ्लो को मैक्सिमाइज करने के लिए जो आपका जो फ्लो होगा वो एक सर्कुलर रीजन में होगा, दो सेमी सर्कुलर x क्या होगा, क्या x को ले लो, तो आंसर देखिए आप, फर्स्ट पार्ट आएगा आपका इसका जीरो दिया हुआ है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, what is there in this part, the extra area generated is the area of the whole floor is maximum। तो एक्स्ट्रा एरिया क्या जनरेट हुआ, अगर हम पूरे एरिया को मैक्सिमाइज करते हैं तो x0 हो गया, x0 हो जाता है, जब हम पूरे एरिया को मैक्सिमाइज करते हैं तो एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड क्या होगा, नो चेंज, बोथ एरियाज विल बी द सेम, है ना। अगर हम एक्स्ट्रा एरिया जनरेट कर रहे हैं, एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज, अभी हमने देखा अगर एरिया ऑफ होल फ्लोर, पूरे फ्लोर को हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, x की वैल्यू क्या आ गई जीरो, तो अगर x की वैल्यू जीरो आ गई तो देयर विल बी नो चेंज, है ना। तो ये तो डायरेक्ट आंसर है, इसको कुछ नहीं करना आपको, क्या आ जाएगा नो चेंज, बोथ एरियाज आर इक्वल। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्या होना है, to be a case study, this will be your second case study, it is based on probability, probability case study, first case study आपने probability based थी, second one second is based on probability। what they are saying, in an office 3 employees Vinay, Sonia and Iqbal process incoming copies of a certain form, ठीक है, so there are three events we can take। Now you as soon as you read the question, start writing even if you form processed by in an office, 3 employees are there, Vinay, Sonia and Iqbal. They process incoming copies of a certain form.
प्रोसेस करते हैं incoming copies of a certain form. Vinyl process करता है 50% of the forms. Vinyl कितने forms process करता है? Form process by Vinyl even as an each form process by sodium and each will be form process by bar. ये बोला है कि 50% form process करता है. By 100 like form. ये process सोनिया कितने process करती है form? सोनिया processes 20% of the forms. Okay, तो इसकी probability क्या हो जाएगी? 25 then Iqbal processes 30% of the forms. ठीक है, तो इसकी probability क्या हो जाएगी? 100. Even if the easy probabilities आपको दे रहे हैं, then they are saying Vinay has an error rate of 0.06. मतलब एरर आता है तो हम एक ले लेते हैं एरर आता है एरर एरर आता है तो वो बोल रहा है विनय हैज एन एरर रेट ऑफ 0.06. तो एरर विनय से हुआ प्रोबेबिलिटी दैट एरर इससे हुआ है इवन क्या है विनय ने प्रोसेस किया तो विनय से एरर हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है देयर की आपको 0. then they are saying Sonia has an error rate of 0.02. सोनिया अगर प्रोसेस करती है सोनिया प्रोसेस करती है एरर रेट क्या हो जाता है एरर सोनिया हैज प्रोसेस इक्वल टू व्हाट 0.04. Same way probability of a by b3 में एक बार प्रोसेस फॉर्म then error rate will be equal to 0. तब एरर रेट क्या हो जाता है 0.0. क्या ये अपन को गिवन है. ठीक, अब अपन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. क्वेश्चंस हैं आपके. इट्स टाइम नाउ फॉरवर्ड. विल कंटिन्यू द नेक्स्ट डे. क्वेश्चंस इजी हैं, ट्राई करना एक बार. नहीं होगा तो विल कंटिन्यू. ओके, थैंक यू क्लास.